we are going to move on. And after reading a couple of points regarding the Prime Minister, that he heads the National Defense Committee and he also heads the CSIR, and Prime Minister is usually from the lower house or the Lok Sabha. For instance, there have been a couple of exceptions, but then only to begin with. Like Indira Gandhi was the first Prime Minister from Rajya Sabha, but then later she became a member of Lok Sabha. Similarly, Manmohan Singh was member of Rajya Sabha from the state of Assam. Now, moving on. So another proof of the fact that membership of the cabinet is not restricted to the lower house is the fact that Prime Minister need not be a member of Parliament, but must become one within 6 months through nomination or election. So, you see the importance of couple of words here. Either through nomination or through election. He has to become member of the Parliament first, either through election or through nomination, and then he can become a Prime Minister. It is not necessary that the Prime Minister, or for that matter any other minister, should necessarily be member of the lower house, right? The office of Deputy Prime Minister is just an extra constitutional concept. It's not mentioned in the Constitution. Now, President rule is not imposed upon the resignation of the Council of Ministers. Rather, the President will ask to continue till alternative arrangement, or outgoing Council of Ministers would retain the charge till formation of new government. So, the President rule is not imposed upon the resignation of the Council of Ministers, right? So, this is all you have to remember. Rather, the President will ask to continue till alternative arrangement, or outgoing Council of Ministers would retain the charge till formation of new government. So, the resignation of Council of Ministers, even once the resignation of Council of Ministers has taken effect, the President may ask them to continue till alternative arrangement is made, or till outgoing Council of Ministers in some instances would be asked to retain the charge till formation of a new government. But more or less, the crux of this paragraph is that President rule is not at all imposed upon the resignation of Council of Ministers, right? That's all you should remember from here. Then the fact that Prime Minister resigns if he loses the majority in the lower house is not explicitly mentioned in the Constitution. It's just a convention. Now, this is something that is something new to me, because it is a convention, and it's very easily believable that it's a well-written fact in the Constitution, but it's not. So, if the Prime Minister resigns on the basis of losing majority in the lower house, it's just a convention that has been followed over many years. Okay, so it's not written in the Constitution of India. Now, minimum 50 members are required to table a no confidence motion against the Council of Ministers. 50 members minimum चाहिए ये आपको, required to table a no confidence motion against the Council of Ministers. Against the Council of Ministers, no confidence motion pass करने के लिए आपको minimum 50 members का support चाहिए. However, there is no mention of no confidence motion in the Constitution. Again, there is no mention of the word no confidence motion in the Constitution. Similarly, there is no mention of the word Dalit. Similarly, there was no mention of the word cabinet. It was only added through the 44th Amendment in 1978. And similarly, if Prime Minister resigns when he loses the majority in the lower house, that mechanism is also not written in the Constitution. It's just a well-established convention. Okay. Moving on, only the President, Governor, or the Parliament can decide upon the validity of Office of Profit. So, validity मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई सिविल सर्वेंट होल्ड कर रहा है या नहीं, या कोई मिनिस्टर होल्ड कर रहा है कि नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, या गवर्नर डिसाइड करता है, या फिर पार्लियामेंट एज अ होल एंटिटी डिसाइड करती है, राइट? प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर पार्लियामेंट. सो दीज पीपल डिसाइड वेदर a person is holding office of profit or not holding office of profit. Okay, so then moving on. So this is the table of some of the previous prime ministers. You can remember the tenures as much as possible. So just remember that Dev Gowda was from 96 to 97, and I.K. Gujral was after Dev Gowda. So I.K. Gujral was after Dev Gowda from 97 to 98. All right.
this is I.K. Gujral. Then from 90 to 91 it was Chandrasekhar, and he was pre LPG. Before, because because only after Chandrasekhar came Narsimham Rao, जिनके अंतर्गत LPG रिफॉर्म्स हुए थे. और फिर 1989 से 90 के बीच ये विश्वनाथ नाम के बंदे थे. तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम देख सकते हैं ये. एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक ये निमोनिक याद रखना है, JIGA, जीगा. दैट मीन्स जवाहर, इंदिरा, गुलजारी एंड अटल. So these are the prime ministers with more than one tenure, that is more than 5 years of tenure. And second prime minister of India, लाल बहादुर शास्त्री, हमें पता है जिनका फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान. किसान 1965 में जो ये बोले थे. और he died in 1966 in Tashkent. Now so 89 से 90 के बीच विश्वनाथ थे, और 90 से 91, but before the LPG reforms started, so I think it was Chandrasekhar. And then from 96 to 97 it was Dev Gowda, and 97 to 98 it was I.K. Gujral. And then 98 में मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे. And then JIGA मैंने बता ही दिया कि जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, गुलजारी and अटल. So these are the prime minister who had more than 5 years of tenure, that is more than one tenure actually. So Dev Gowda was from Karnataka, and he was the 12th prime minister, whereas Modi, when he became the prime minister in 2014, then he was the 15th prime minister of India. Also, except Chandrasekhar, all the above had served previously as chief ministers. चंद्रशेखर को छोड़ के बाकी जितने मैंने नाम लिए हैं ऊपर, सभी लोग कभी न कभी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके थे. तो चाहो देव गौड़ा की बात कर लें या मोदी जी की बात कर लें, तो सभी ने चीफ मिनिस्टर्स का पद भी संभाला था. मोरारजी देसाई बॉम्बे से थे, और ये प्राइम मिनिस्टर 78 से 70 नहीं, मोरारजी देसाई देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा. सो अभी के लिए याद रखो, मोरारजी देसाई वाज फ्रॉम बॉम्बे, राइट. देन प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्यसभा कौन कौन थे? वैसे तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी, देन मनमोहन सिंह भी थे. तो मनमोहन सिंह की बात हो गई, I.K. गुजराल हो गए, देव गौड़ा हो गए. तो ये लोग राज्यसभा से थे, लेकिन चंद्रशेखर जो थे ये लोकसभा से थे. ठीक है. Then Chaudhry Charan Singh was the prime minister between 79 to 80, and although he was a member of Lok Sabha, but he never attended the Lok Sabha, right? तो he never attended the Lok Sabha. तो एक बार और बता दे रहे हैं कौन कहाँ से था. So जीगा हमने एक निमोनिक पढ़ा, JIGA, जवाहर, इंदिरा, गुलजारी एंड अटल. So these were the prime ministers having more than one tenure. फिर हमने पढ़ा देव गौड़ा 12th प्राइम मिनिस्टर थे 96 से 97 तक, और कर्नाटका से थे ये. और मोदी 15th प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक्सेप्ट चंद्रशेखर, ऑल अबव हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर्स. एंड प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम द राज्यसभा, तो एक मनमोहन सिंह हैं, और I.K. गुजराल भी जो 97 से 98 में थे, वो भी राज्यसभा से थे, और देव गौड़ा भी राज्यसभा से थे. लेकिन चंद्रशेखर लोकसभा से थे, हु वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 90 टू 91. ठीक है, राइट. देन चौधरी चरण सिंह, ही वाज प्राइम मिनिस्टर फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड between 1979 to 1980, and he never attended Lok Sabha. Then some former finance ministers की अगर हम बात करें तो YV श्रवण है, जो अब ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है. तो उल्टा अगर हम चलते हैं तो देखो, ये चिदम्बरम हैं जो अभी लेटेस्ट NK सिंह से पहले के अगर हम बताएं, तो सॉरी NK सिंह तो फाइनेंस सेक्रेटरी, ये निर्मला सीतारमण के पहले अगर हम देखें तो चिदम्बरम हो गए. उसके बाद ये प्रणब मुखर्जी, फिर VP सिंह और वेंकट रमन देख लो. मतलब ये एग्जैक्टली एकदम सीक्वेंस में नहीं है, हाँ, लेकिन ऑर्डर सेम है. ठीक है. तो YV श्रवण की बात करें तो ये बहुत ही पहले आते हैं, मतलब 1970s. अब इनमें से आपको ये भी नहीं याद रखना है, बाद वाला साल याद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप केवल इधर वाला याद रखो 1970 वाला, फिर इधर 1980, फिर 84, फिर 2009, फिर इधर 2012. ठीक है. तो YV श्रवण हो गया 1970 में. ठीक है. फिर आपका वेंकट रमन जिनके बारे में अभी तक पहली बार मैं सुन रहा हूँ. वेंकट रमन भी कभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कोई बात नहीं. सो
वेंकटरमन 1980 में फाइनेंस मिनिस्टर बने। फिर वीपी सिंह 84 से 87 के बीच फाइनेंस मिनिस्टर थे। और प्रणब मुखर्जी 2009 से 12 के बीच। और फिर चिदम्बरम 2012 से 14। तो इधर के तो दो आसान है याद रखना, चिदम्बरम 2012 से 14 हो गए और प्रणब मुखर्जी 2009 से 11 हो गए, ठीक है। और फिर उधर हमने देखा सबसे पहले वेंकटरमन थे 1970। फिर हमने देखा वो वाई बी श्रवण थे 1970 वाले। और फिर 1980 में हमने देखा था वेंकटरमन थे। और फिर वीपी सिंह थे 84 से 87 के बीच, ठीक है। इस तरह से अपना थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, हालांकि वो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और रिप्रेजेंटेड इंडिया एट आईएमएफ एंड ही हैज़ आल्सो बीन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो वेरी डायनामिक पर्सनालिटी और बिल्कुल कॉन्ट्ररी उनका मतलब पर्सनालिटी बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। नाउ गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट ये क्या कहती है? इट वॉज रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट, reorganization of the union cabinet. Now cabinet secretariat finds mention in the rules of procedure conduct of business 1961. cabinet secretariat का जिक्र यहाँ पे आपको मिल जाता है। it prepares the agenda for cabinet meetings, gives secretariat assistance to cabinet committees, help in interministerial coordination. it does not allocate financial resources to the ministries. तो ये important statement है। cabinet secretariat does not allocate financial resources to the ministries, ठीक है। although it prepares agenda for the cabinet meetings, gives secretariat assistance to the cabinet committees, help in interministerial coordination, लेकिन cabinet secretariat का ये काम नहीं है कि वो allocate करेगा financial resources to the ministries। उसकी पावर या अथॉरिटी में ये नहीं आता है, ठीक है। अब ये कुछ मेमोरियल्स हैं, जैसे ये हमारे 9th प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा थे, उनका जो मेमोरियल वो कर्म भूमि कहलाता है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा 9th। फिर राजीव गांधी, अभी ये यहाँ पे 9th याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस शंकर दयाल शर्मा मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो उनका कर्म भूमि कहलाता है। राजीव गांधी का वीर भूमि कहलाता है। नेहरू का आपका शांतिवन कहलाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट कहलाता है, ठीक है, ठीक है। फिर अंबेडकर का आपका ये चैत्य भूमि मुंबई में है, ये चैत्य भूमि कहलाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये महाप्रयाण भूमि ये पटना में है। और ज्ञानी ज़ैल सिंह, इनका ये एकता स्थल कहलाता है न्यू दिल्ली में। और आई के गुजराल का स्मृति स्थल कहलाता है, ये भी न्यू दिल्ली में है। तो एकता स्थल आपका स्मृति स्थल है आई के गुजराल और एकता स्थल है ज्ञानी ज़ैल सिंह, ठीक है। सो एकता स्थल है ज्ञानी ज़ैल सिंह का, स्मृति स्थल है आई के गुजराल का। उसके बाद जननायक स्थल ये चंद्रशेखर का है। और किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह का है। और नारायण घाट ये अहमदाबाद में है, ये गुलजारी नंदा, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और समता स्थल ये भी न्यू दिल्ली में है, ये जगजीवन मेरे ख्याल से लेबर मिनिस्टर थे पहले हमारे, उनका ये समता स्थल कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो फिर से देखते हैं। देखो, इसको याद करने का मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक है। तो जैसे वीर भूमि है, अब देखो वीर भूमि भी वीर स्टार्ट्स विद द वर्ड विद द लेटर वी, तो यहाँ पे राजीव एंड्स विद द लेटर वी, तो वीर भूमि हो जाएगा आपका राजीव गांधी का, ठीक है। अब नेहरू को शांति वांति पसंद थी, पीसफुल आदमी था नेहरू, तो नेहरू के लिए फिर शांतिवन हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने लड़ाई वड़ाई कर दी थी, तो विजय घाट होना चाहिए, ठीक है। अंबेडकर चैत्य भूमि और ये मुंबई में है। फिर राजेंद्र प्रसाद, नाम सबसे लंबा है, बहुत लंबा नाम है, मतलब डॉक्टर, लंबी पढ़ाई की होगी, डॉक्टरेट हैं, तो यहाँ भी लंबा होगा, महाप्रयाण भूमि। फिर एकता स्थल गोज़ विद ज्ञानी ज़ैल सिंह एंड स्मृति स्थल गोज़ विद आई के गुजराल। और एकता और स्मृति स्थल दोनों न्यू दिल्ली में है। इनफैक्ट जननायक स्थल जननायक चंद्रशेखर का है, जो वो भी न्यू दिल्ली में है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, वो भी न्यू दिल्ली में। नारायण घाट, अब देखो नारायण स्टार्ट्स विद द लेटर एन एंड गुलजारी नंदा में भी एन आ रहा है, तो नारायण घाट आपका गुलजारी नंदा से है, बट द ट्रिकी पॉइंट इज़ दैट इट इज़ इन अहमदाबाद, ये भी याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में जगजीवन, जो हमारे लेबर मिनिस्टर थे,
उनका समता स्थल न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्लोगन जय जवान जय किसान वॉज गिवन बाय इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर 1965 लाल बहादुर शास्त्री, एंड आई ऑलरेडी नो दैट he was the second prime minister, Lal Bahadur Shastri. The union cabinet secretariat is not operated under the अभी हमने यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, उसका नाम था गोपाल अयंगर स्वामी कमिटी। ये देखो, गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैबिनेट, रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। और अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिर से बता दे रहे हैं। तो देखो, वाई बी श्रवण काफ़ी पुराने हैं, वाई बी श्रवण 70s, ठीक है। फिर वी पी सिंह 1980, उसके बाद सॉरी गलत बता दिए, वाई बी श्रवण 1970s, उसके बाद वेंकट रमन। तो वाई बी श्रवण 1970 और वेंकट रमन 1980 और वी पी सिंह जाएगा 84 से 87। उसके बाद 2009 से 12 में तुम्हारे प्रणब मुखर्जी और फिर 12 से 14 चिदम्बरम है, ठीक है जी। फिर ये गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट बता दिया मैंने, राइट। देन मूविंग ऑन, तो ये जय जवान जय किसान का स्लोगन बता दिया। अब यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज़ नॉट ऑपरेटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फाइंड्स अ मेंशन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1961। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बिल्कुल भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत भी नहीं आता। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसको हेड करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और जो कि 1977 में बनाया गया था, राइट। तो उसका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कोई भी लेना देना नहीं है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ या पार्लियामेंट्री अफेयर्स वगैरह से। इट डायरेक्टली कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस विच वॉज सेट अप इन 1977, विच इज़ हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर्स। नाउ अब ये आइडेंटिफाई द पर्सन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ही इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री and of course he will be appointed by the president. Then he has qualifications of a Supreme Court of India judge. So who is he? So he is given in Article 76, I think Attorney General of India है ये, and he has right of audience in all the courts in the territory of India. किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं ऑडियंस के रूप में। The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as President may determine. So Attorney General holds office during the pleasure of President और remuneration भी as President may determine आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। क्लॉज 4 में लिखा है कि हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज और जॉइंट सिटिंग विदाउट ए राइट टू वोट। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसी तरह से ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज और इवन जॉइंट सिटिंग बट विदाउट द राइट टू वोट। ही हैज़ parliamentary privileges, yes, and all the above provisions analogous to Advocate General of the state. तो अगर ये 76 है तो 76 + 89 165 हो जाता है, विच इज़ द आर्टिकल नंबर फॉर एडवोकेट जनरल, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 148 की बात करें तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिज टेन्योर इज 6 years और 65 years of age. Now he is the guardian of public purse, comptroller and auditor general. He is the eye and ear of public accounts committee, eye and ear of public accounts committee and guardian of public purse. और आर्टिकल 151 में लिखा है कि he submits his audit reports relating to the accounts of a state to governor who shall in turn place them before the state legislative assembly. Dr. Ambedkar stated that CAG shall be the most important officer under the Constitution of India. तो ये भी सवाल बन सकता है कि which office did Ambedkar consider as the most important office under the Constitution? तो वो CAG का चला जाएगा आर्टिकल 148 के अंतर्गत। अब क्या करते हैं ये कि CAG स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट अकाउंट्स को ऑडिट करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट दे देगा गवर्नर को, राइट। और फिर वो गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल करते हैं। नाउ सो दिस इज़ रिटन इन आर्टिकल 151। देन CAG की बात करें, सो ड्यूटीज़ पावर्स सर्विस कंडीशंस एक्ट 1971, इनके लिए एक अलग से स्टैचूट बना है जिसको अमेंड भी किया गया था 1976 में। अटॉर्नी जनरल कैन ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ लोकसभा, अच्छा जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब जब ये he can take part in the proceedings of both the houses or even a joint sitting, then why not
why not a member of a parliamentary committee or any committee of Lok Sabha? तो Attorney General can also become a member of the committee of Lok Sabha, ठीक है. The Solicitor General, however, is the second law officer of the Government of India. He assists the Attorney General. ठीक है. So the CAG submits 3 reports to the President: audit report on public undertakings, appropriation accounts, and finance accounts. So 3 reports to the President देता है. Public undertakings का audit report देता है. appropriation accounts का रिपोर्ट देता है और फाइनेंस अकाउंट्स का रिपोर्ट्स देता है, ठीक है. बिल्कुल इसी वर्बैटिम एग्जैक्टली वर्ड्स में याद होना चाहिए, कोई दाएं बाएं नहीं. ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू 3 अकाउंट्स, एक है पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एक है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और एक है फाइनेंस अकाउंट्स. फिर से बता रहे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स. इन तीनों अकाउंट्स को खास तौर पे ऑडिट करता है CAG और रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को दे देता है, who then causes the report to be tabled in the parliament, ठीक है. Now president tables them in parliament, then उस report को उसके बाद public accounts committee analyzes it and gives its findings to the parliament. Now CAG can also audit anybody or authority even though not substantially financed from the consolidated fund of India at the request of the president or the governor. He does not control any account. ठीक है. उसमें से पैसा कहाँ जाना है, किसको देना है, वो काम नहीं करता है. ही जस्ट ऑडिट्स देम, ठीक है. सो CAG ऑल्सो अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. हिज ड्यूटीज़ आर गिवन इन आर्टिकल 149. तो जब 148 में CAG का जिक्र है, 151 में कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा या गवर्नर को देगा, और फिर 149 में उसके ड्यूटीज़ वगैरह दिए हैं, ठीक है. तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के मीटिंग्स में भी वो हिस्सा ले सकता है, अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. एंड यस, दैट इज़ ऑल अबाउट CAG, राइट. द हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस, दे डू हैव ओरिजिनल एंड एपलेट, ठीक है. तो हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये याद रखना. और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास तो तीनों है, ओरिजिनल, एपलेट एज वेल एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, whereas हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ओके. देन अब वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट करें तो ये आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट आता है, और 64 में ही शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है. और 65 में है कि वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ही डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो ये क्या है, ऑफ कोर्स दो डाल पे थोड़ी रहेगा. जब 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 वो प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा तो फिर वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में काम नहीं करेगा. नाउ इलेक्शन बाय ऑल, अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो दैट इज़ गिवन इन 66. और इलेक्शन बाय ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसके इलेक्शन में, किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं. तो ये इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, यानी कि सभी प्रकार के मेंबर्स जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग. सो दैट इज़ गिवन इन 66. सो यहाँ पे 63, 64, 66 यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है. 63 में वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट. 64 में ही द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एंड 66 में लिखा है कि उसका इलेक्शन जो करेंगे वो सभी इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट करेंगे. ओके. द वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स है. और 67B एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं बताना भूल गया. ये इसको इम्पीच करने का या फिर हटाने का प्रोसेस 67B में दिया है, जबकि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का तरीका 61 में दिया है. तो ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय राज्यसभा. अभी देखो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन मस्ट बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय लोकसभा. तो बाय ऑब्सोल्यूट प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग बाय बोथ द हाउसेस. तो इनिशिएट तो करेगा रेजोल्यूशन राज्यसभा, बट उसके बाद राज्यसभा से भी वो 2/3, मतलब ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, जितनी स्ट्रेंथ है उसका डिवाइडेड बाय 2 + 1 होना. तो इसका मतलब ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गई, प्लस जितने प्रेजेंट हैं उस दिन उसका 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए. तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी. तो यानी कि द रेजोल्यूशन मस्ट बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा, then it must be passed by a special majority in Rajya Sabha, then it must be passed by a special majority in the Lok Sabha. यानी कि दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए.
बट दिस रिक्वायर्स 14 days प्रायर नोटिस. ओके, देन राधा कृष्णन. अब ये मेरे ख्याल से ये प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. तो अब यहाँ देखो, राधा कृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन है, फिर गिरी हैं, वी गिरी. ठीक है, तो 5-5 के ग्रुप में तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं. तो राधा कृष्णन, जाकिर, गिरी, पाठक, फिर जट्टी, और फिर हिदायतुल्ला तक देखते हैं. ठीक है, अभी मेरे को पता है कि ये शंकर दयाल जो थे वो मेरे ख्याल से 9th प्रेसिडेंट थे क्या. अब एक्चुअली राधा कृष्णन वॉज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, तो ये तो मेरे ख्याल से सेकंड प्रेसिडेंट हैं. तो जब ये सेकंड है तो शंकर दयाल विल बी 9th, बिकॉज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th. ठीक है, तो ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑनवर्ड्स बता रहा है इंडिया के. तो राधा कृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन है, फिर अभी ये कैसे याद कर सकते हैं हम लोग. तो राधा कृष्णन का आप RA निकाल लो. ठीक है, तो दैट ये हो गया रा. देन फिर जा हो गया, जाकिर का जा निकाल लो, ZA. देन पाठक का पा निकाल लो, रा जा पा. और ये JA निकाल लो, रा जा पा जा. ठीक, ये 4 हो गए. उसके बाद हिदायतुल्ला का केवल हाय निकाल लो, हाय वेंकट और शंकर, हाय वेंकट शंकर दयाल. सो हाय वेंकट कॉमा शंकर दयाल. तो इतने हो गए. अब इसके बाद 2 लोग ऐसे आते हैं जो जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, एक KR नारायण और एक कृष्णकांत. ठीक, और लास्ट में ऐसे लोग आते हैं जो जिनके नाम काफ़ी मतलब अनयूजुअल्स हैं, एक भैरव और एक हामिद. तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं. ठीक है, अब इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी हैं. जैसे राधा कृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, ही वॉज अ डिप्लोमेट टू USSR. और जो वी गिरी थे ये डिप्लोमेट थे श्रीलंका के, और KR नारायण थे, ये डिप्लोमेट थे चाइना के. ठीक है, तो अभी श्रीलंका की इकोनॉमी गिर चुकी है, तो ऐसे याद कर लो कि वी गिरी, तो गिरी वॉज डिप्लोमेट टू श्रीलंका. और यहाँ पे जो है राधा कृष्णन और USSR दोनों में R लेटर आ रहा है, तो इस तरह से ये याद कर सकते हैं. अभी KR नारायण, तो नारायण, और इसमें चाइना में N आ रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं. ठीक है, एक बार और बताते रहें. अब ऐसी ट्रिक्स वियर्ड होती हैं बट काम होना चाहिए अपना बस. ठीक है, तो अब देखो, हमने बताया था रा जा पा जा, उसके बाद हाय वेंकट कॉमा शंकर, हाय वेंकट कॉमा शंकर. उसके बाद मैंने बताया 2 के से आते हैं, तो पहले KR नारायण है, उसके बाद कृष्णकांत आते हैं, उसके बाद 2 अनयूजुअल नाम आते हैं, भैरव और हामिद. अब मैंने बताया वी गिरी वॉज डिप्लोमेट टू श्रीलंका, एंड ये जो राधा कृष्णन वॉज डिप्लोमेट टू USSR, और KR नारायण वॉज डिप्लोमेट टू चाइना. अब देखो सारे हो गए याद. अब ये एक आइसोलेटेड फैक्ट है, इसको जल्दी से देख लेते हैं. सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल एक्सरसाइज in a way which does not prejudices the union executive power. So executive power of the state shall exercised in such a way that does not prejudices या disrespects or goes against the union executive power. तो बस यही है, executive power of a state is less than union executive power in simple terms. ठीक है, that is given in article 257.